Hello everyone, I hope you guys are doing fine. I am here yet again with you guys where I'll be sharing some tips and tricks to clear some of your doubts regarding NEET PG 2022 examination and how to proceed and plan your year for the examination. So before I further discuss about the strategy, I just wanted you people to clear some stats. Okay, when I say clear some stats, I just wanted you guys to have that plan in your mind so that you have that proper visualization where you guys are heading to. So we all know that in the every year around 1.7 to 2 lakh students give NEET exam every year, NEET PG examination every year. And when we talk about the recent NEET PG 2021 examination, around 1.7 lakh students gave the exam. So considering that, and if we assume that there are around 15,000 clinical seats, हमने ये मान लिया कि 15,000 clinical seats हैं including anesthesia. Okay, so for each seat, okay, for each and every clinical seat around 11 people are competing. Yeah, that is true. For around 15,000 seats are there, so for every seat you have 11 people. Okay, so yeah, that is the pace the competition is heading to. Also, when we compare it to the previous year NEET 2020 examination, the person who secured 70% marks got a rank of around 1K, where the same person in recent NEET 2021 examination who secured 70% marks got a rank of around 6K. Yeah, can you imagine? So yeah, I just wanted to clear this, picturize this, and when I say this, I by no means want to scare you people. मैं तुम लोगों को डरा नहीं रही हूँ ये सब बोल के, because I just want you all people to have this picture in your mind कि कैसे plan करना है और कितना ज़्यादा competition है, because when you know this thing, okay, then only you will be able to plan your timetable and कितना GTs में marks score करना है. So now you know that whatever GT you give, you have this picture in your mind कि हाँ मुझे 600 or whatever 70% marks GT में score करने हैं. Okay, then only you are in the competition. Okay, because the pace by which the competition is heading, it's very difficult to get a seat in the 60-65% marks. So कि हाँ 70% marks मुझे target करने ही करने. And when you study, okay, you should always have this target कि हाँ मुझे rank 1 achieve करनी है. Okay, ऐसा नहीं है कि मैम क्या बोल रही है मैं तो rank 1 achieve कर ही नहीं सकता. No, you all people have that potential in you कि you people can achieve rank 1 in your examination. And also अगर तुम rank 1 लेकर चलोगे exam में, then only you would be able to get that 1K, 2K, 3K rank. Okay, अगर तुम 1K, 2K, 3K rank ही लेकर चलोगे कि हाँ मुझे ये सीट क्लिनिकल सीट तो इस रैंक पे मिल जाएगी, then you are not in the competition. तब जाकर तुम्हारी बहुत ही बेकार रैंक आ जाएगी. तो you have this picture in your mind कि हाँ मुझे 2 digit रैंक सिक्योर करनी है. मतलब सबको तो यही मानकर चलना है कि 1 रैंक मुझे सिक्योर करनी है. That's why I always say कि make a diary और एक चार्ट पेपर ले लो, okay, and write down your dream college, your dream branch, and okay, stick that in your room so that every morning when you wake up you have that thing in your mind कि हाँ this is my target and I have to anyway achieve this rank, okay, this particular rank. Okay, so yeah, that's how you should head. Okay, now coming to the planning and processing कि कैसे plan और process करनी है चीज़ों को. So take this thing in your mind कि हाँ मुझे इतने दिन में, मतलब इट टेक सम कोई भी मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, सपोज मेजर सब्जेक्ट यू अराउंड टेक 10 और 11 डेज़ लगते हैं मेजर सब्जेक्ट को ख़त्म होने में, तो हाँ इसको मुझे 10 डेज़ में ख़त्म करना है. फिर उसके MCQs भी उसी में सॉल्व करने हैं. ठीक है, MCQ सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ सब्जेक्ट, बिकॉज MCQ क्योंकि अब क्या हो गया कि प्रीवियसली दे यूज टू बी अराउंड 1200 का एग्जाम मार्क्स का एग्जाम होता था एंड 300 क्वेश्चन यूज टू गेट आस्क्ड. ओके, तब क्या होता था कि वी हैव एन आइडिया, वी यूज टू गेट एन आइडिया कि हमको एक आइडिया होता था कि ओके एनेस्थीसिया से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, OBGYN से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, वी हैव दैट आइडिया. ओके, बट अब क्या हो गया है कि बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 200, नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया कि अब हमें पता नहीं है कि कितने मार्क्स कुछ भी आ सकता है, बिकॉज दे आर आस्किंग यू इन द इंटीग्रेशन. नाउ द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, अब तो ऐसा नहीं सोच सकते कि ये माइनर है तो इसमें से तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें से तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आएंगे. नो, अब यार एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है एंड यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद द इंटीग्रेशन. ओके, दैट्स व्हाई दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सॉल्व क्लिनिकल विग्नेट्स. ओके, वट एवर सोर्स यू आर यूजिंग, आई यूज मैरो एट माई टाइम, सो दैट आई यूज टू प्रोवाइड वेरी नाइस
is clinical weakness. So you go to whatever source you are using and try solving those questions. Okay, अब मैं ऐसा है कि मतलब कि लोग बोलते हैं कि ओके 10 days you take major subjects and 5 to 6 days minor subjects के लिए लग जाते हैं, 3 days minor subjects के लिए लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, we have our own potential. सपोज अगर मैं अपने लिए लूँ तो मान लो कि माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सर्जरी सपोज, ओके, बट आई लाइक सर्जरी, ओके, हो सकता है दैट सब्जेक्ट टेक ओनली 5 days फॉर मी टू कंप्लीट, ओके, हो सकता है मुझे उसके लिए 10 days ना लगे, ओके, मैं 5 दिन में उसको ख़त्म कर लूँ, बट सपोज यू आर सम पर्सन who don't like surgery, okay, उसको सर्जरी पसंद ही नहीं है, तो it will take even more than 10 days for you to complete, okay. So you should make a schedule according to your priority, okay. हो सकता है तुम सर्जरी ख़त्म कर दो जल्दी, या ऑफ्थेल लोग बोलते हैं इट्स अ माइनर सब्जेक्ट, और पीडियाट्रिक्स लोग बोलते हैं इट्स अ माइनर सब्जेक्ट, बट वी ऑल नो इन आवर हेड कि यार ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं, नाम के माइनर सब्जेक्ट्स हैं, बट स्टिल दे टेक मोर देन 10 days समटाइम्स टू फिनिश दैट. सो कैटेगराइज योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रियोरिटी. सपोज मुझे माइक्रोबायोलॉजी पसंद है तो मे बी मैं उसको 4-5 days में ख़त्म कर दूँ, तो वो जो मेरे बचे हुए 5 days हैं उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, मे बी मैं ऑफ्थेल में इन्वेस्ट कर दूँ. सो लाइक दैट यू शुड मेक अ प्लान इन योर हेड अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. रीड योर ओन नोट्स, और अपने ही नोट्स बनाने हैं. जस्ट कीप इन माइंड कि अपने ही नोट्स बनाओ, एंड इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू मेक योर ओन नोट्स, जस्ट रिफर टू द सोर्स के नोट्स से रिफर कर लो, बिकॉज डोंट रिफर टू योर फ्रेंड्स नोट्स. बिकॉज क्या होता है कि फ्रेंड्स के नोट्स पे अगर तुम रिफर कर जाते हो ना, सो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ थिंग्स कि उन्होंने अपने हाईलाइट किए होते हैं, अपने जहाँ पे उनको कन्फ्यूजन होता है, दे माइट हैव रिटन देयर कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, तो वो तुम्हारे हेड में हो जाते हैं. एंड सबके अलग अलग में भी जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, जो आपको आती है वो मुझे नहीं आती. सो यू शुड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. और अगर किसी भी वो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं बना पाते हो नोट्स, तो try to solve those सोर्स के नोट्स को रिफर कर सकते हो. ओके, नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू द 3 P's, ओके, 3 P's, द गोल्डन रूल. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नॉट मिस दैट. ओके, सो या सो लाइक दैट यू हैव टू कैटेगराइज योर सब्जेक्ट्स. और क्या होता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, ठीक है, मान लो तुमने सर्जरी पढ़ा, सो ट्राई लाइक दैट कि हाँ जब मैंने पूरा दिन पढ़ लिया है, नाउ लास्ट के 2-3 hours आई विल इन्वेस्ट दैट इन कम्प्लीटली MCQs, और डेली के 100 MCQs सॉल्व करने हैं. ओके, ट्राई दैट, मेक दैट टारगेट. और जितना भी मतलब तुमने प्रीवियस डे पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है. मान लो उसमें 2 घंटे ही लग जाए, 3 घंटे ही लग जाए, ओके, जस्ट ट्राई टू फिनिश दैट. ओके, कि जो भी प्रीवियस डे पढ़ा है उसको हम आज ही रिवाइज करके ही सोएं, बिकॉज द पॉइंट इज दैट इफ़ यू डोंट रिवाइज थिंग्स ना, यू वॉन्ट बी एबल टू रिटेन. ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड दोज 19 सब्जेक्ट्स और एक बार वो बस खत्म हो जाए. नो, यू शुड नॉट डू लाइक दैट. ओके, क्वालिटी शुड ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज ओवर क्वांटिटी. ओके, भले ही तुम 12 सब्जेक्ट्स पढ़ो, भले ही तुम 13 पढ़ो, बट यू शुड बी एबल टू रिवाइज दोज. ऑब्वियसली यू शुड स्टडी ऑल द 19 सब्जेक्ट्स इफ यू हैव टाइम, बट ऐसा नहीं है कि उसको बस एक बार पढ़ के ही रहना है एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग. ऐसा तो फिर बस लर्निंग हो जाती है. इट्स नो रिविजन इज जस्ट इक्वल टू going to exam without studying. It's just like that, believe me. So revision is very important. Okay, और try कि उसके जितना भी तुम previous day पढ़ो उसको उसके अगले दिन revise कर सको. Okay, so like that you have to make your schedule. और ट्राई मैंने बोल ही दिया है कि MCQ सॉल्व करना है. और 20 days में कीप अ डे फॉर GT. अपने आप को एनालाइज करो. और तुम एनालाइज कैसे कर सकते हो अपने वीक सब्जेक्ट्स? रैंडमली जस्ट गिव अ GT एंड जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे आते हैं लास्ट पे 4 सब्जेक्ट्स, जस्ट पिक दैम एंड ट्राई टू फिनिश दैट इन अ पीरियड ऑफ 1 month. ओके, जो ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ कि यू शुड बी एबल टू फिनिश 4 सब्जेक्ट्स इन अ मंथ. ओके, अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट्स यू पिक, व्हाट सब्जेक्ट आर यू गुड एट और यू बैड एट. ओके, उन सब्जेक्ट्स को अपना कैटेगराइज करके ऐसे उनको शेड्यूल करो कि यू शुड बी एबल टू फिनिश दो सब्जेक्ट्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 month. ओके, 4 सब्जेक्ट, बिकॉज अ वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट इन द नेक्स्ट नीट एंड इट्स अ नेक्स्ट नीट एग्जाम एंड इट्स अ वेरी golden opportunity for you guys if you utilize it efficiently. Okay, now coming to those golden 3 P's. Okay, this thing is only for those people who are lagging behind time and who don't have much time to study. So this golden rule is that 3 P's: pharma, pharmacology, physiology and pathology. If you are thorough with these 3 subjects, okay, you can leave medicine. Okay, you can leave medicine, trust me, because these 3 subjects form the base of the medicine. And when you go to the exam and if you have left medicine and you are very thorough with these 3 subjects, trust me, you won't
feel like that you haven't studied medicine. Obviously you have to study some sideways topics क्या मतलब जैसे ECG ख़त्म करना है प्लस मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ ख़त्म करनी है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ में से पक्का 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, दैट्स द रूल, ठीक है। तो यू हैव टू स्टडी दोज, प्लस अगर तुम मेडिसिन लीव भी कर देते हो, अगर तुम यू आर वेरी थॉरो विद दीज 3 सब्जेक्ट्स देन इट डजंट मैटर, ओके। So these are the things that I want, these are the things that I have compiled, and I just wanted you guys to follow these, because I tell the things because based on my own personal experience, okay। क्योंकि मैंने ऐसा फेस किया, दैट्स वाई आई गाइड यू गाइज। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि जस्ट डू दिस या फिर 10 days प्लान बना लो या 5 days प्लान बना लो, बिकॉज आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन priority, okay। So yeah, I know sometimes it becomes really hard for you guys, कि कैसे होगा क्या होगा, but trust me guys, trust me, just keep believing yourself and keep on going, revise करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, MCQ solve करते रहो, integration के साथ पढ़ो, trust me, you will succeed in your exam and you will come out with flying colors। और AIR मतलब 2 digit क्या, you will get AIR 1, trust me, it's not a big deal। So these are the things that I have compiled, and that's it for today's video, and I work really hard to make a video, and I hope you guys like it, and if you do like, share and subscribe to my channel, and share this video, and let's make this channel a success together। And I have so many videos for you guys, and I try to make it as simple as possible for you guys, so that you should be able to follow। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा hard and fast वाले वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ जो फॉलो ही ना हो। So yeah, that's all for today's video. I'll see you very soon in the next video. Till then, bye.